Good morning and welcome in today's class. Our chapter which we people are going to discuss today is measures of central tendency, arithmetic mean. And the topics in this chapter which we people are going to discuss are listed here. Let's see the first topic, that is meaning and definition of central tendency. Then we are going to see the definition of central tendency and meaning of measures of central tendency. These are the three topics which we people are going to discuss first. Let's see this. What is central tendency? If we talk about central tendency, we can say central tendency refers to central value which represents the whole series. The central value which represents a particular statistical series is called as central tendency. We can understand this through an example. Suppose there are 130 crore people in our country, and if we want to know the income earned by the Indians, what we have to do is we have to calculate, we have to this is a group of you can say raw data, means one income of 130 crore people. It's a group in itself. It's very difficult to understand or remember the income earned by such a large group. So what we people can do is we can find out a single representative value which will represent the income earned by Indians. How we people are going to do is this is by finding out the average income earned by a person in India. Well, how we people are going to do is we are going to add the income earned by all the Indians and divide it by the total number of population. Then what we will get? We will get a representative value or a central value, and this central value is called as central tendency. This central value, there is one more name for this central value, that is average. Central tendency is also called as average. Now we people are going to see the definition. There are large number of definitions given by different statisticians about what is central tendency. Today people are going to discuss a definition given by Clark. It's a very simple one and it very easy to remember it also. What Clark says is an average is a figure that represents the whole group. Average, as I have told you, is a second name for central tendency. Central value, तो सेंट्रल वैल्यू को इन्होंने यहाँ पे एवरेज भी कहा है. तो इनका क्या कहना है कि एवरेज क्या होता है? इट इज़ दैट पर्टिकुलर फिगर विच रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप. एवरेज क्या होती है? वो पर्टिकुलर फिगर होती है जो पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरे के पूरे सीरीज की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है. जैसे मैंने आपको बताया कि 130 करोड़ लोगों की इनकम को इंडिविजुअली ध्यान में रख पाना बहुत बड़ा टास्क है. तो ऐसे में हमने क्या किया? उन सबकी इनकम को ऐड किया और हमने एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर ली. और जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है क्या है? वो सेंट्रल वैल्यू है जो पूरी सभी लोगों की इनकम को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करती है. इसे हम आगे भी बहुत अच्छी तरह से एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे. आप लोगों को ध्यान उसे याद कर पाना बड़ा आसान हो जाएगा कि होता क्या है ये. चलिए अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक और टर्म की. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? तो हम कह सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि वो सारे मेथड्स जो जिनके माध्यम से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि पूरी की पूरी सीरीज की एवरेज को फाइंड आउट करने में मदद करता है. यानी कि हम यूँ भी कह सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू all those methods of statistical analysis by which averages of the statisticals can be worked out. किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज के में से एवरेजेस को निकालने के लिए या एवरेज को निकालने के लिए और सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए जिन भी मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है उन मेथड्स को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या पर्पस है या क्या फंक्शंस हैं एवरेजेस के. तो सबसे पहला फंक्शन है एवरेजेस का, दैट इज़ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. जब भी हम एवरेजेस को फाइंड आउट करते हैं तो जो एवरेज होती है ये
काफ़ी आप कह सकते हैं इसे रिप्रेजेंट कर पाना है, या सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन की बात करें अगर हम इसकी, तो हम कह सकते हैं मेन पर्पस जो एवरेज का होता है, इसका होता है कि प्रेजेंट करना पूरी सीरीज़ की स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन को बड़े आसान तरीके से, यानी कि मेन पर्पस ऑफ एवरेज इज टू रिप्रेजेंट अ सिंपल एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स ऑफ द रॉ डेटा। जो भी रॉ डेटा हमारे पास है किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ के फॉर्म में हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज़ के फॉर्म में हो, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के फॉर्म में हो, जो डेटा हमारे पास है उसे किस प्रकार से सिंपल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जा सके, जिससे कि उसे बड़े आसानी से समझा जा सके। तो ये पहला पर्पस क्या है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो भी सीरीज़ हमारे पास है उसे एक ऐसी वैल्यू जो उसे बड़े सिंपल तरीके से डिस्क्राइब हमें कर सके, जो बड़े सिंपल तरीके से उसकी एक सेंट्रल वैल्यू को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर सके। ऐसी जो उनसे वैल्यू होगी वो क्या है, वो पूरी की पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू होती है। तो पहला पर्पस इसका ऐसा है कि हमें एक ऐसी वैल्यू मिले जो कि पूरी सीरीज़ को बड़ी आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हमें रिप्रेजेंट, हमें उसकी बारे में, उसके फीचर के बारे में हमें बता पाए। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्पस की। तो सेकंड पर्पस इसका है कंपैरिजन। जो एवरेजेस होती हैं ये हमें डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा जो हमारे पास होते हैं उनके बीच में कंपेयर कर पाना, या उन्हें कंपैरेटिव तरीके से हमारे सामने ला पाना, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पर कैपिटा, सपोज जैसे भी मैंने अब आपको बताया था कि एवरेज निकाले हम इंडियंस की इनकम का, तो वो क्या देता है हमें, पर कैपिटा इनकम देता है ना। एक व्यक्ति की इनकम ऑन एन एवरेज हमारे देश में कितनी है, वो हमने क्या ऐसे पिछले जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर हमने समझा था कि टोटल 130 करोड़ लोग हैं, सबकी इनकम को ऐड किया और टोटल जितने भी लोगों की इनकम से हमने उसका ऐड किया 130 करोड़, उससे डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गई, एवरेज वैल्यू मिल गई, सेंट्रल वैल्यू मिल गई, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अब क्या है कि पर कैपिटा इंडिया की इनकम और पर कैपिटा यूएसए की इनकम, अगर दोनों की पर कैपिटा इनकम है, हमें पता है कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है और हमारे देश की कितनी है, तो हम उसे बड़े आसान तरीके से कंपेयर कर पाते हैं। तो अगर एवरेजेस जो होती हैं ये हमें दो आप कह सकते हैं कि सेट्स ऑफ डेटा के अंदर इजी तरीके से कंपैरिजन पॉसिबल कराती हैं। एवरेजेस, अब तीसरे पॉइंट की बात करें हम, सेकंड पॉइंट हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सेकंड पॉइंट हमने बात करी कंपैरिजन की। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। एवरेजेस जो होती हैं ये जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एवरेज को, जब हम सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी को हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमें फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ में भी काफ़ी मदद करती है। सपोज अगर हमें ये पता है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम भारत में कितनी है, इसे हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करके हमारे भारत की परिस्थिति हमारे सामने क्लियर है। अब गवर्नमेंट ऐसे में क्या करेगी, उसको आधार बनाते हुए अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेगी कि किन किन एरियाज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके लिए अपने अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आएगी ताकि उनको, जो हमारे वीक एरियाज़ हैं उन्हें दूर किया जा सके, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और देश के अंदर पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जा सके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके मालूम है कि 10th क्लास की एवरेज मार्क्स कितने आए थे या आपके परसेंटेज कितनी आई थी, तो आप उसके आधार पर कि आपको अपने वीक एरियाज़ का पता चलेगा और आप अपने उन वीक एरियाज़ के ऊपर वर्क करोगे, अपनी पॉलिसीज़ बनाओगे ताकि आप 11th क्लास में अच्छे मार्क्स ला पाओ। Let's see the fourth point, that is statistical analysis. Statistical analysis says that suppose if a student knows what are the marks, average marks secured by him in different subjects in a particular class, what now he can do is he can easily analyze the subject in which he has got the less marks, and he can easily work hard on that particular subject to make that particular subject more stronger. Means statistical analysis means looking at the different areas and finding out the stronger and the weaker areas, and to so that he can work upon the area on which he needs to work hard. Let's see the fifth one, that is one value for all. It means the average represents the value
विच रिप्रेजेंट होल ऑफ अ सीरीज। एवरेज क्या है? पूरी की पूरी ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। तो वो पूरे के पूरे ग्रुप को अगर हम लोगों ने अगर हमें रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो जिस एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है या हमारा एवरेज होता है। तो ये पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं वन वैल्यू फॉर ऑल। मीन्स होल ऑफ अ ग्रुप, वी आर नॉट गोइंग टू टेक होल ऑफ ए ग्रुप। हम पूरे के पूरे ग्रुप को एक बार में नहीं ले सकते, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? उस पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू को निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किया और आगे भी एक और डिटेल में मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज। एक गुड एवरेज के लिए या एक आइडियल एवरेज के लिए जो एसेंशियल्स होते हैं हम उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन। क्लियर और स्टेबल डेफिनेशन क्या कहती है कि हम चाहे किसी भी तरीके से अपनी एवरेज फाइंड आउट कर लें, चाहे हम किसी भी तरीके से अपनी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर लें, वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, या यूं कहें हमें वो रिजिड होनी चाहिए। कोई भी तरीका अपना लिया जाए एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए, जो कैलकुलेट करके वैल्यू हमारे सामने आए वो सेम रहनी चाहिए। वो क्या हो? डेफिनेट हो, फिक्स्ड वैल्यू हो। किसी भी तरीके से निकालें, मीन आपका सेम, आपका एवरेज जो आए वो बिल्कुल सेम आए। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं वो अपने आप में एक गुड एवरेज है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड पॉइंट की, सेकंड एसेंशियल की, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। जो एवरेज हम फाइंड आउट करने वाले हैं या जो हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होता है पूरी की पूरी सीरीज का, पूरे डेटा का, वो अपने आप में बेस्ड होना चाहिए हर एक ऑब्जर्वेशन पर। यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट उसे फाइंड आउट करने में होना चाहिए। सपोज आप अपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं, तो ऐसे में हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे। किसी भी वैल्यू को बीच में से इग्नोर नहीं किया जाएगा, वो हर एक वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस वजह से वो जो वैल्यू होती है, जो हम एवरेज निकालते हैं, वो हर एक वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो एक गुड एवरेज आपकी कहलाएगी। तीसरा, यहाँ पे एसेंशियल की बात करें तो जो आपकी एवरेज होनी चाहिए, दैट मस्ट बी अ सिंपल वन। सिंप्लिसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी एक, आप कह सकते हैं, एक और एसेंशियल है गुड एवरेज का। यानी कि वो इतनी इजी, उसे निकाल पाना, उसे फाइंड आउट करना मस्ट बी अ सिंपल टू बी डन बाय एनी पर्सन। इट मस्ट बी अ सिंपल वर्क। काम कैसा होना चाहिए एवरेज निकालने का? जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एक सिंपल तरीका होना चाहिए जिसे बड़े आसानी से हम फाइंड आउट कर सकें। तो उसकी एक और जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि एसेंशियल होता है कि इट मस्ट बी सिंपल टू बी वर्कड आउट। उसे बड़े आसान तरीके से हम फाइंड आउट कर पाएँ तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास एवरेज आई है वो आपकी क्या है? एक गुड एवरेज है। हम बात करते हैं अब फोर्थ पॉइंट की, दैट इज सर्टेनिटी। एक गुड एवरेज जौन सी होती है वो सर्टेन होती है अपने कैरेक्टर के अंदर। यानी कि एवरेज वैल्यू जौन सी है वो बाकी जो आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं उनके लिए अगर वो सर्टेन होगी, क्लियर होगी, स्टेबल होगी, सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने वाली होगी, तो आप उससे फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाएंगे। आगे फर्दर और उसमें से कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बड़े आसान तरीके से बाकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार के तौर पर हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मीन है जो सा उसे हम मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह निकालने में भी इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं। अगर आपने उसे सर्टेन वैल्यू है, बड़े सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट की है एवरेज के तौर पर, तो उसे फर्दर बेसिस के तौर पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के इस्तेमाल किया जा सकता है। Let's see the fifth one, fifth essential, that is absolute number.
एक गुड एवरेज होता है जौन सा, इट शुड बी एन ऑब्सोल्यूट नंबर, वो अपने आप में एक ऑब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए। आप कह सकते हैं परसेंटेज या रिलेटिव वैल्यू है जौन सी, वो आपकी एक गुड एवरेज नहीं हो सकती। तो आपकी वैल्यू कैसी हो, वो अपने आप में एक होल वैल्यू हो, एक ऑब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, तभी हम उसे एक गुड एवरेज कह पाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, लीस्ट इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन सैंपल। एवरेज जो होती है किसी भी सीरीज की, किसी भी ग्रुप ऑफ डेटा की, जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसे, उसके ऊपर जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, स्टार्टिंग की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू है, ये सबसे लास्ट वैल्यू है, उसका कम से कम असर, उनसे कम से कम अफेक्टेड वो होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें से अगर सैम्पल वैल्यू को भी अगर हम चेंज कर दें तो उसका भी आपके एवरेज के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, आपने ऐसे एक सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, गुड एवरेज कहलाएगी। Let's see the seventh one, seventh essential for a good average, that is algebraic treatment. A good average on सी होती है that is capable for further mathematical और algebraic treatment. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो ये क्या होती है कि अगर आपकी गुड एवरेज है तो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स उसके ऊपर किए जा सकते हैं, फर्दर मैथमेटिकल पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने अभी अपनी बात करी essential. Let's move further to next topic, that is types of statistical averages. अगर हम statistical averages की बात करें तो दो तरह की statistical averages होती हैं। averages दो तरह की होती हैं, एक आपकी mathematical averages होती है और दूसरी आपकी positional averages होती हैं। अगर mathematical averages की बात करें तो mathematical averages को further तीन भागों में बांटा गया है, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। और दूसरा टाइप है जो उनसे एवरेजेस का, दैट इज पोजिशनल एवरेजेस। और पोजिशनल एवरेजेस भी तीन तरह की होती हैं, मीडियन, पार्टिशनल वैल्यू और मोड। इस चैप्टर में हम मैथमेटिकल एवरेजेस के फर्स्ट टाइप जो सा आपका अर्थमेटिक मीन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम उसके बात करें अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन अपने आप में क्या होता है, ये मोस्ट पॉपुलर और यूजफुल मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उन तरीकों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका जौन सा आपका है, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन। ये आप कह सकते हैं सिंपल एवरेज, जो आप कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो हम निकालते हैं ये सिंपल एवरेज होती है पूरी की पूरी सीरीज़ की पूरी सीरीज़ के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जब हम अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं तो इसे हम सिंपल एवरेज भी कहते हैं, या सिंपली एवरेज भी इसे हम कहते हैं। जो अर्थमेटिक मीन है, अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो टोटल वैल्यूज़ हैं किसी भी एक सीरीज़ के अंदर, ग्रुप है जो सा हमारे पास आइटम्स का या सीरीज़ का, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उन सबको हम ऐड करने के बाद कितनी आइटम्स थे उसके नंबर से अगर हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फॉर्मूला टू फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन, या मीन, केवल मीन भी कहते हैं इसे हम अर्थमेटिक मीन को। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को हम एक्स के ऊपर जो बार लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एक्स बार भी कहते हैं। एक्स बार क्या है कि सपोज 5 आइटम्स हमारे पास हैं, हम 5 आइटम्स एक सीरीज के अंदर 5 वैल्यूज़ हैं, उन पांचों वैल्यूज़ का हमने मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x1 पहली वैल्यू होगी, x2 सेकंड वैल्यू, x3 थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसी तरह से 5 वैल्यूज़ हमारे पास हैं। पांचों को हम टोटल करने के बाद, क्योंकि 5 वैल्यूज़ है, 5 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारी अर्थमेटिक मीन कहलाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि आपके 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर हुए और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे सामने हैं। इंग्लिश में यू हैव गॉट 80 मार्क्स, हिंदी में 90, मैथमेटिक्स में भी 90, सोशल साइंस में 95 एंड साइंस में 75। ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क हमारे पास हैं।
तो हमने क्या किया, इन पांचों सब्जेक्ट्स का अगर हमें मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो आपके हैं उनको टोटल करने के बाद, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स में से हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी, सेंट्रल वैल्यू मिलेगी, वो हमारी अर्थमेटिक मीन होगी या मीन होगा। तो इन पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जब हमने टोटल किए तो वी गॉट 430, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो 5 से डिवाइड किया, एंड वी हैव गॉट द एवरेज एज या मीन एज 86। अब बात कर लें यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की भी, कि अर्थमेटिक मीन की भी कुछ टाइप्स हैं क्या आगे। तो यस, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। द फर्स्ट वन इज सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें तो जितने भी आइटम सीरीज के अंदर होते हैं सबको प्रॉपर और इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है। हर एक सब्जेक्ट आइटम को इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हुए हम उनको ऐड करते हैं और उनसे हम मीन निकाल लेते हैं। जब सिंपल तरीके से मीन निकाला जाता है वो आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन कहलाता है। बट कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास जो आइटम सीरीज में दिए गए हैं उनकी अपनी रिलेटिव इम्पॉर्टेंस होती है। तो हर सब्जेक्ट, हर आइटम को अपनी एक रिलेटिव इम्पॉर्टेंस दी जाती है, सबकी अलग अलग इम्पॉर्टेंस होती है, तो उनको जो वेट, उनकी इम्पॉर्टेंस के बेसिस पर उन्हें वेट दे दिया जाता है, अकॉर्डिंगली उनको वेट प्रोवाइड किए जाते हैं, और फिर उसके साथ वेट के साथ हम उनका मीन निकालते हैं, और फिर वो आपका क्या कहलाता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल लेंगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और अब तक, तब तक के लिए थैंक यू।